हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आराधना और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। तो आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। कटरीना कैफ के शादी के सवाल पर सोनम कपूर ने कैसे डिफेंड किया कटरीना को, और साथ ही दिखाएंगे आपको ऐसी कुछ सिजलिंग हॉट स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया मैक्सिमम बस। सोनम और कटरीना रिसेंटली दिखे शेयरिंग अ स्टेज फॉर एन इवेंट, और यहाँ कटरीना से पूछे उनकी शादी के सवाल पर सोनम दिखी डिफेंडिंग हर। मोर ऑन दिस इन आवर टॉप स्टोरी। A rare sight to see in Bollywood, जहां एक टॉप हीरोइन दूसरी टॉप हीरोइन को कर रही हो इस तरह पैम्पर। But believe it for yourself as you watch this happening in front of you. Sonam और कटरीना कैफ shared the stage for their common brand. दोनों ने साथ रैम्प भी चला और मीडिया से बातें भी की। We show you what caught our attention the most. अब कटरीना और रणबीर की शादी का टॉपिक हर जगह हॉट रहता है। ऐसे में जब हमने कटरीना से यहाँ उनसे मैरिज के बारे में पूछा तो पहले सोनम ही आ गई इन डिफेंस। She's gonna get married after me. We've decided this, and when is that gonna happen? We don't know yet. Katrina, what's your answer for this? I think that's an excellent suggestion. I should get married after Sonam, and I don't think Sonam knows yet as well. So I think neither of us know. Well, Sonam, we do understand your soft corner for Ranbir Kapoor, but इसका जवाब कटरीना ही दे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। Yeah, see, everything is possible. हो सकती है is a very generic. I mean, anything is always possible, but. I don't have any plans yet, so I can't share the plans with you. But if I do, and when I do have the plans, I promise you I will tell you. That's my promise. Katrina was also questioned about the break she had to take in between of her Maldives holiday with Ranbir, जिसका reason Katrina ने अपने brand को बता दिया। Manashi's fault. All Manashi's fault. She called me. I had to come back. All the way back on the plane, I was only thinking about Manashi. See her face. वैसे यहाँ सोनम और कटरीना के टंग इन चीक इक्वेशन ने भी हाईलाइट बनाई। Watch how these ladies pull each other's leg in a subtle way. I think the main difference between me and Sonam is when Sonam is in front of the camera or in an event or in her own life, personal life, if you just see her at a restaurant, she always looks like she's just stepped off a red carpet, or she could just go onto a red carpet. If you see me at an event like this, I may look like I belong there, and if you see me in my own life, I look like I'm going to bed. So basically one has style consistently and consecutively, and some of us, you know, don't all the time. मुझे एक बहुत अच्छी इंसिडेंट याद है। मैं एक रेस्टोरेंट में गई थी और कटरीना वहाँ थी अपनी मम्मी के साथ, वो खाना खा रही थी और उन्होंने एक जीन्स और टी शर्ट, बहुत ही फैंसी रेस्टोरेंट है बाय द वे, और उन्होंने जीन्स और टी शर्ट पहना था, कुछ मेकअप नहीं था, बाल एकदम ऐसे उन्होंने टाई किए थे, और आई थिंक यू वर वेयरिंग फ्लिप फ्लॉप्स कैट इफ आई एम नॉट, एंड मुझे याद है कि मैंने एक क्रिश्चियन डियोर का स्कर्ट पहना था, क्रॉप टॉप पहना था, और कटरीना लाइक डिड यू कम फ्रॉम एन इवेंट? I was like, no, I was at home. I just put this on, and she's like, how long did it take you? I said 5 minutes. She's like, I took 5 minutes as well. That's a very common occurring event with me and Sonam. I'm like, wow, what are you wearing? Have you just come from an award show? No, I've just come from home. Okay, fine. And the last highlight was Sonam's reaction on working with Salman. वैसे यहाँ सोनम के जवाब से ज्यादा नजरें कटरीना के एक्सप्रेशंस पर गईं। Keep a look. जी, मैंने अपनी पहली फिल्म उनके साथ की थी, सावरिया, और मैं उन्हें बचपन से जानती हूँ। वो मेरे पापा के बहुत ही जिगरी दोस्त हैं, और वो अब मेरे दोस्त भी हैं, आई कैन कॉल हिम दैट, और वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और उनके साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा। होपफुली हम और काम करेंगे एक साथ फ्यूचर में। Well, ये तो कुछ highlights थे of this event, but Katrina and Sonam sharing the same stage itself was the biggest highlight of this evening. For Alka Shrivastava Thapa, Zoom, Mumbai. अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। Those who missed out on our show, हम आपके लिए लाए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन।
इस वीक काउंटडाउन को किक स्टार्ट करेंगे द एनर्जेटिक डांसर्स वरुण धवन एंड श्रद्धा कपूर विद वरुण's candid comment on श्रद्धा। मुझे लगता है कि श्रद्धा आगे जाके सुपर मॉम बनेगी। जी हाँ, वरुण धवन ने कर दिया है ऐलान कि आगे चल के श्रद्धा टॉप हीरोइन बने या ना बने, लेकिन ABCD 2 में काम करते करते वो आगे चलकर सुपर मॉम जरूर बन सकती हैं। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर पहुंचे एक डांस रियलिटी शो पर, जहां जजेस के पैनल में थे गोविंदा भी। एंड एज एवरीवन नोज वरुण गोविंदा को कितना रिस्पेक्ट करते हैं, यहाँ भी उन्होंने गोविंदा से मिलने की एक्साइटमेंट दिखाई और उनसे जुड़ी अपने बचपन की मेमोरीज को याद किया। मैं सबसे ज्यादा गोविंदा से मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ ऑब्वियसली, एंड बहुत टाइम के बाद मिलने वाला। काफी फोटोग्राफ्स और वीडियोस है हमारे बचपन के साथ में छुपे हुए। Any songs? We used to dance to Govinda songs. We dance on Govinda songs. Near Govinda. वैसे यहाँ वरुण ने ये भी बताया that how Shraddha and he used to take in dance competitions and lose. श्रद्धा भी, क्योंकि बचपन में हम लोग हमने बहुत डांस किया बचपन में साथ में भी। गंदी डांसेस हम लोग साथ में ऐसे जो बच्चों की डांसेस होती थी ना, बच्चों के कंपटीशन, वो हम लोग करते थे, हारते थे साथ साथ। इस हफ्ते काउंटडाउन पर नंबर 9 पर जगह बनाई अनुराग कश्यप और उनकी फिल्म बॉम्बे वेलवेट ने। आजकल अनुराग अपनी अपकमिंग फिल्म बॉम्बे वेलवेट को लेकर काफी सेंसिटिव हो गए हैं। इतना ही नहीं, पर इस फिल्म से रिलेटेड आया कोई रूमर भी उन्हें आजकल गुस्सा दिला रहा है। वह साफ है अनुराग अपनी फिल्म को लेकर कुछ भी नहीं सुनना चाहते, और फिर से एक बार ऐसा ही कुछ हुआ। दरअसल एक एक्सबिटर ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर बॉम्बे वेलवेट को लेकर लिखा, Guess Fox Star will see their deepest low and greatest high this year, at the rock bottom in May and on cloud number 9 in November. #Bombay Velvet, #Prem Ratan Dhan Payo। वेल, इस स्टेटमेंट के आने की देर ही थी कि अनुराग कश्यप, जो कि जनरली सोशल नेटवर्किंग साइट पर कुछ भी बोलने से बचते हैं, उन्होंने इस एक्सबिटर को ट्वीट करते हुए ये कहा, @Aksharathi, I will take you up in that। साफ है अनुराग कश्यप को अपनी फिल्म को लेकर कुछ भी नेगेटिव सुनना पसंद नहीं है, और ऐसा होना भी चाहिए। आखिर अनुराग ने इतनी मेहनत से ये फिल्म जो बनाई है। इस वीक काउंटडाउन नंबर 8 पर है स्टार स्टडेड नाइट। ऋतिक, आलिया, करण जौहर, अनिल कपूर और उनके साथ बॉलीवुड के कई और चेहरे आए साथ टू सेलिब्रेट एन इवनिंग दिस वीक। इस अवार्ड्स नाइट में जहां टेलीविजन वर्ल्ड को किया गया ऑनर, वहीं बॉलीवुड के कुछ चेहरों को भी अवार्ड से किया गया फेलिसिटेट। जैसे कि आइडेंटिकल कलर में ड्रेस श्रद्धा कपूर और ऋतिक रोशन को मिला ब्रांड वर्ल्ड में अपने अचीवमेंट्स के लिए अवार्ड। वैसे ऋतिक ने यहाँ उनसे जुड़ी खबरों पर अपना क्लैरिफिकेशन भी दिया। जैसे की खबरें आ रही थी दैट ऋतिक विल गो न्यूड इन हिज अपकमिंग फिल्म मोहनजोदारो। ऋतिक ऑब्वियसली डिनाइड द न्यूज इन हिज विटिएस्ट बेस्ट। नहीं, मैं पिक्चरों में न्यूड नहीं होता। वेल, अब वो कहीं और कहाँ हैं, ये हम आपकी फैंटेसी पर छोड़ देते हैं। इवेंट की दूसरी हाईलाइट रही आलिया भट्ट, who looked slim and looked as if she's on a weight losing spree. Alia also showed off her gift, which her mentor Karan Johar had gifted her on her birthday. That's happy. Actually, Karan ने मुझे गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे के लिए। My mobile phone and my jawbone. क्यों? आप लेडीज पर्स के अंदर झांक के नहीं देख सकते, एक रूल है। वेल, इससे पहले आलिया को गुस्सा आए, मीडिया ने भी उनकी तारीफ कर दी एंड द बबली आलिया seemed to be on cloud number 9 soon. I lost weight. You made my day. I've been working very hard. कई दिनों बाद काउंटडाउन पर फिर एक बार बस क्रिएट किया माधुरी दीक्षित ने ऑन द 7th स्पॉट। फिल्म देवदास के आइकॉनिक सॉन्ग डोला रे डोला की तरह ही संजय लीला भंसाली अपनी अपकमिंग फिल्म बाजीराव मस्तानी में भी एक सॉन्ग शामिल करने जा रही हैं। इस सॉन्ग में भी डोला रे डोला की तरह ही 2 एक्ट्रेस होंगी। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण के साथ संजय लीला भंसाली आजकल एक स्पेशल सॉन्ग शूट कर रहे हैं, और सोर्सेस का कहना है कि ये सॉन्ग भी डोला रे की तरह ही क्लासिकल बन सकता है। ऐसे में हमने देवदास की लीड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित से इस सॉन्ग के बारे में बात की। I think they might make their own mark. They might create something that's different from what Dola Re Dola was, and they have a lovely person guiding them. That's Sanjay Leela Bhansali, who will be there directing them what to do, and I think they might make a new mark. Well, माधुरी को भी पूरा भरोसा है कि ये सॉन्ग ऑडियंस को जरूर पसंद आएगा, क्योंकि संजय लीला भंसाली जैसे डायरेक्टर इस सॉन्ग को डायरेक्ट कर रहे हैं। Well, माधुरी का ये स्टेटमेंट बना गया उन्हें इस हफ्ते का नंबर 7 बज़ मेकर। इस हफ्ते काउंटडाउन नंबर 6 की पोजीशन ग्रैब की है अक्षय कुमार ने। बॉलीवुड के तीनों खान
आमिर, सलमान और शाहरुख खान सारे इम्पोर्टेंट हॉलिडेज पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। सलमान खान ईद हॉलिडे पर, शाहरुख दिवाली के दिन और आमिर खान क्रिसमस हॉलिडे को कैश इन करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लगभग 1 से 1.5 साल पहले ही ये स्टार्स अपनी फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर देते हैं और अब अक्षय कुमार ने हमें बताया है कि आखिर स्टार्स इन पब्लिक हॉलिडे रिलीजेस के चक्कर में हमेशा क्यों रहते हैं। खान हमेशा जो हॉलिडे पीरियड ले लेते हैं, ये कितनी इम्पोर्टेंट होती है फिल्म के रिलीज के लिए? अच्छी होती है, एक माहौल बड़ा बना रहता है छुट्टियों का और लोग जाते हैं पिक्चर एंड उससे फिल्म के बिज़नेस में करीबन डबल से ट्रिपल का फ़र्क पड़ जाता है। जी हाँ, पब्लिक हॉलिडे फिल्म के बिजनेस पर बहुत ज्यादा असर डालती है। ऐसे में हर कोई हॉलिडे पीरियड पर ही अपनी फिल्म रिलीज करना चाहता है, लेकिन बॉलीवुड में जहाँ सैकड़ों फिल्में बनती हैं, वहाँ हर किसी को हॉलिडे नहीं मिल सकता। ऐसे में ये बहस तो चलती रहेगी कि कौन करेगा हॉलिडेज पर अपनी फिल्म को रिलीज। वैसे अक्षय की अपकमिंग फिल्म गब्बर इज बैक भी May 1 को रिलीज हो रही है और अकी को भरोसा है कि नॉन हॉलिडे होने के बावजूद उनकी फिल्म अच्छा बिजनेस करेगी। इस फिल्म इट इज ऑन अ नॉन हॉलिडे, इट इज ओनली महाराष्ट्र ऑफ, सो इट्स अ नॉन हॉलिडे गिना जाएगा। सो लेट्स सी, वी आर कीपिंग आवर फिंगर क्रॉस। वेल चलिए अक्षय, वी होप टू आपकी ये फिल्म ऑडियंसेस को पसंद आए और आपकी फिल्म का कलेक्शन किसी हॉलिडे वीकेंड की तरह ही हो। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। वेल, आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। आइए देखते हैं इस हफ्ते की बाकी न्यूज मेकर्स की इंटरेस्टिंग खबरें। Creating a buzz on the number 5 position this week is our very own Nawab of Pataudi with his reaction to the Supreme Court's decision for live-in couples. हाल ही में सैफ अली खान को हमने स्पॉट किया एट एन इवेंट और यहाँ उनसे पूछा गया रिसेंटली आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उनका रिएक्शन। मैं कहना चाहूँगी अच्छा हुआ मेरी शादी हो गई, अच्छा हुआ मेरी शादी हो गई, अच्छा हुआ मेरी शादी हो गई। वेल, सैफ के स्टेटमेंट को सुनकर आप सोच रहे होंगे शादी के लगभग 3 साल बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दिया। वेल, तो दरअसल यहाँ बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में आए एक फैसले की, जिसमें कहा गया था कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को मैरिड समझा जाएगा। सैफ ने इस जजमेंट पर अपना कोई ओपिनियन तो नहीं रखा, पर अपनी शादी की बात करके ये जाहिर जरूर कर दिया कि वो इस इशू पर बयान देकर कोई आफत नहीं मोल लेना चाहते। सैफ अली खान यूं ही पिछले कुछ समय से कंट्रोवर्सी की वजह से न्यूज में बने रहते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर वो कमेंट करके कोई कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं करना चाहते थे। हफ्ते काउंटडाउन पर नंबर 4 की पोजीशन पर बस क्रिएट किया सलमान खान और उनकी हिट एंड रन कोर्ट केस ने। May 6 सलमान खान की लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डे हो सकता है। ये डेट सलमान खान के लिए ला सकता है खुशियों की सौगात, या फिर ये दिन बन सकता है सलमान की लाइफ का ब्लैक डे। जी हाँ, मुंबई के सेशन कोर्ट ने सलमान खान के एलिजेड 2002 हिट एंड रन केस का वर्डिक्ट इसी दिन यानी 6 मई 2015 को सुनाने का फैसला किया है। इस दिन सलमान खान को कोर्ट में मौजूद रहकर कोर्ट के इस फैसले को सुनना होगा। सलमान खान के साथ इस फैसले की घड़ी में उनकी फैमिली उनके साथ मौजूद रहेगी। हम आपको बता दें, सलमान खान पर IPC की धारा 304 पार्ट 2 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का केस चल रहा है। इस केस में एक आरोपी को 10 साल तक सजा हो सकती है। इस केस में प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट के सामने 27 से ज्यादा विटनेस पेश किए हैं। वहीं डिफेंस ने इनमें से ज्यादातर गवाहों के बयान पर सवाल उठाए हैं। Ruling the countdown on number 3 is SRK and politician Amar Singh. क्या बोलूं, उनकी तबीयत नासाज है, उनको ठीक हो जाए। मैं सचमुच सच्चे दिल से मैं दुआ करता हूं कि तन मन दिमाग की शक्ति मिले उनको, वो जल्दी ठीक होकर जल्दी से वापस आए हमारे देश में। अमर सिंह जी कह रहे हैं खटास रहे, लेकिन कभी खटास नहीं, प्यार ही है। हम लोग बहुत प्यार करते हैं। शाहरुख खान के ये दोनों स्टेटमेंट पॉलिटिशियन अमर सिंह को लेकर आए हैं। SRK का एक बयान ईयर 2009 में आया था, जब अमर सिंह ने उनके न्यूयॉर्क एयरपोर्ट कंट्रोवर्सी को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया था और SRK अपना गुस्सा दबा नहीं पाए थे। क्या बोलूं, उनकी तबीयत नासाज है, उनको ठीक हो जाए। मैं सचमुच सच्चे दिल से मैं दुआ करता हूँ कि तन मन दिमाग की शक्ति मिले उनको, वो जल्दी ठीक होकर जल्दी से वापस आए हमारे देश में। वेल, SRK शायद उस वक्त अमर सिंह से गुस्सा थे, तभी तो वो कुछ ऐसा बोल गए। लेकिन अमर सिंह और शाहरुख खान की दोस्ती रिसेंटली हो चुकी है। ऐसे में दोनों ही एक दूसरे की तारीफ करते नहीं थक रहे। मेरे बड़े खट्टे मीठे अनुभव है शाहरुख से, लेकिन मैं आज खुलेआम कहना चाहता हूँ कि
खटास मेरी तरफ से कभी भले रही हो, लेकिन उन्होंने हरदम हमको मिठास और इज्जत और प्यार दिया है। मैं आज दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर आदमी आता है तो प्रधानमंत्री को भले भूल जाता है, लेकिन वो बाबा को भी, शाहरुख को याद करना पड़ता है। शाहरुख हिंदुस्तान के तरफ। अमर सिंह जी कह रहे हैं खटास रहे, लेकिन कभी खटास नहीं, प्यार ही रहे। हम लोग बहुत प्यार करते हैं। शाहरुख खान भले ही कह रहे हैं कि अमर सिंह के साथ उनका रिश्ता हमेशा अच्छा रहा है, लेकिन हम आपको इन दोनों की इस बनते बिगड़ते रिश्ते की सच्चाई बताते हैं। शाहरुख खान और अमर सिंह हमेशा से ही एक दूसरे के करीब रहे हैं, लेकिन ये 2007 में फिल्म फेयर अवार्ड के दौरान शाहरुख खान का किया गया मजाक अमर सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं आया था और उसके बाद एसआरके के घर मन्नत के बाहर अमर सिंह के सपोर्टर्स ने जमकर प्रोटेस्ट किया था। अमर सिंह के सपोर्टर्स की ये हरकत एसआरके को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और उन्होंने इनडायरेक्टली ही सही अमर सिंह को वार्न किया था। 2007 के बाद 2009 में जब शाहरुख खान को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर डिटेन किया गया तो अमर सिंह ने कहा कि ये एसआरके का पब्लिसिटी स्टंट है। वैसे ये दोस्ताना कितना बढ़ चुका है ये आप इन दोनों स्टार्स के डांस परफॉर्मेंस से अंदाजा लगा सकते हैं। इस वीक काउंटडाउन नंबर 2 पर है ऐश्वर्या राय विद येट अनदर कंट्रोवर्सी। ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी इन पिक्चर्स की वजह से फंस गई थी एक बड़ी कंट्रोवर्सी में। ऐश्वर्या को कुछ लोगों ने एक ओपन लेटर लिखकर उनके पिक्चर्स पर सवाल उठाया था। एक एड कैंपेन में सामने आई पिक्चर्स में ऐश्वर्या राय बच्चन के पीछे एक बच्चा अम्ब्रेला लेकर खड़ा दिख रहा था और पिक्चर में इस बच्चे का कलर ब्लैक दिखाया गया, जिसे लेकर कहा जा रहा था कि ये पूरा कैंपेन रेसिज्म को सपोर्ट कर रहा है। इस एड कैंपेन के आते ही सोशल मीडिया पर ऐश को काफी क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन ऐश की पब्लिसिस्ट ने पूरे मामले पर एक स्टेटमेंट देकर चीजों को क्लैरिफाई करने की कोशिश की। Aishwarya was not involved in the final image that appeared in the newspaper. The statement accompanied by the photo below was addressed to the authors of the open letter and read, "On the onset, we would like to thank you on drawing our attention to the observation of the perception of the advertisement." यही नहीं, इस पूरी कंट्रोवर्सी के लिए ऐश की तरफ से इस ब्रांड के लोगों को जिम्मेदार बताया गया। Here is an attachment of the shot taken by somebody during the shoot. The final layout of the ad is entirely the prerogative of the creative team for a brand. However, shall forward your article as a viewpoint that can be taken into consideration by the creative team of professional working on the brand visual communication. ऐश की टीम की तरफ से उस ओरिजिनल फोटोज को भी रिलीज किया गया जिसे ऐश्वर्या ने शूट किया था। इन दोनों पिक्चर्स को जरा ध्यान से देखिए। एक है ऐश की ओरिजिनल फोटो, वहीं दूसरी तरफ न्यूज़पेपर में पब्लिश की गई फोटो को हेवीली एडिट किया गया है। साफ है ऐश्वर्या ने इस पूरे मामले पर अपना स्टेटमेंट देकर खुद को इस कंट्रोवर्सी से दूर कर लिया। वैसे ऐश के इस ब्रांड ने भी एक अपॉलॉजी लेटर लिखकर इस एड कैंपेन में हुई गलती के लिए माफी मांगी, साथ ही इस एड को विड्रॉ करने की भी बात कही। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन की टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। इस वीक काउंटडाउन नंबर 1 को रूल कर रही हैं बॉलीवुड की दो रेनिंग क्वींस, दीपिका एंड कटरीना। Besides having their love interest in common, these ladies have yet another found a common link between them. जी हाँ, ये तो आपको पता ही है कि दीपिका ने रिसेंटली एक सोशल मैसेज को सपोर्ट करते हुए एक वीडियो बनाया था कॉल्ड माई चॉइस, जिसे लोगों ने एक तरफ सपोर्ट भी किया तो दूसरी तरफ सोशल प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को काफी स्पूफ भी किया गया। लेकिन फिर भी दीपिका की ही तरह कटरीना ने भी ऐसा ही एक वीडियो बनाने का जज्बा दिखाया। कटरीना कैफ ने ये वीडियो अपने एक ब्रांड के लिए शूट किया है, जहां वो मैरिज को लेकर काफी बात करती हुई दिख रही हैं। कटरीना कैफ ने अपने इस वीडियो में उन तमाम लड़कियों को मैसेज भेजा है जो ना चाहते हुए भी गलत रीजंस की वजह से शादी कर लेती हैं। जैसे कटरीना ने इस वीडियो में बात करते हुए कहा, Don't get married just because your ex-boyfriend is getting married. कटरीना ने ये भी कहा that don't get married just because छोटी बहन की शादी करानी है। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी अच्छा मैसेज भी देता है। इंटरनेट पर सामने आए इस वीडियो को अब तक काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और रातों रात ये वायरल भी हो गया। साफ है कटरीना कैफ ने अपने इस वीडियो से अपने यंग फैंस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की है और अभी तक तो यही लगता है कि कटरीना अपने इस अटेम्प्ट में सफल भी हुई हैं, मेकिंग हर द नंबर 1 बज़ मेकर ऑफ द वीक। Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom India's #1 Bollywood channel.